भूल गए, याद दिलाया करो तुम लोग यार टाइम पर। चलो कोई बात नहीं, कहाँ तक थे। If the OH of the carbonyl groups are formed from the same molecule, ये क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को? अगर OH जो है सेम में है तो साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। एंड द सर बॉन्ड, ये भी बताया इम्पोर्टेंट लाइन था सर। सर हाँ हाँ अभी बोलिए। जो बताया इम्पोर्टेंट लाइन था सर, फिर से रिपीट कर देते, रिकॉर्डिंग नहीं हुआ फिर से सर, भूल हाँ जाएंगे तो आप। ओके, व्हाट आई वाज टेलिंग इज ओके सर, हेमी। अभी जो बता रहे थे ना हाँ हाँ सेलुलोज। मैं बता रहा हूँ फिर से, देखिए ओके ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप जो है, एल्डिहाइड ग्रुप, ये लीनियर स्ट्रक्चर को पहले आप कंसिडर कीजिए। द एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द टॉप द कार्बोनिल कार्बन। इफ दिस कार्बोनिल कार्बन इंटरैक्ट्स विद द हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द सेम चेन, then this compound will form a ring like structure. Okay, so this formation of, because carbonyl carbon, the double bond here is broken down. Okay, now this oxygen will bound with hydrogen. Okay, and यस सर। this carbon will bound together with the OH group in the alpha form. If this is in the hemiacetal, always in the hemiacetal, the OH group will bind with the carbonyl carbon in the alpha glycosidic linkage form. So यहाँ पर उसकी चर्चा करना, इसीलिए इसको यहाँ पर ओमिट कर दिया गया। ओके, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म यहाँ पर आ रहा है एक्चुअली, जब दो मोनोसेक्राइड यूनिट ज्वाइन कर रहे हैं। कैसे? ये हेमी एसिटल जो है वो साइक्लिक रिंग फॉर्म है मोनोसेक्राइड का। अब हेमी एसिटल में जो OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दिस OH ग्रुप विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस second monosaccharide unit. Suppose this is a monosaccharide. Okay, so OH will become part of the water here, और एक H यहाँ गया, and this oxygen has bound with the carbonyl carbon. Now this bond is called glycosidic bond. This new bond which has been formed between the carbonyl carbon and the second OH group when reacted with the hemiacetal derivative. Now the acetal derivative formation has taken place. In this acetal derivative, this bond is what? Glycosidic bond. Now based upon this, because this carbon has again become the chiral. Initially this carbon was not the chiral when it was present in the linear chain. So now this has become carbon here in the hemiacetal also, in the acetal also. So again, two types of the enantiomers are possible. Okay, so these enantiomers are called as enomers. एनोमर्स, ठीक। अब हम बताएंगे आप लोगों को एनोमर्स, जैसे सेलुलोज क्यों एनोमर्स हो गए। टू टाइप्स ऑफ bonds can be there, alpha in the alpha configuration or beta configuration. Okay, so alpha and beta configuration, the alpha configuration bond can be easily broken. We have the enzymes to break the alpha configuration bond. If this bond is in alpha configuration, जैसे स्टार्च में ग्लूकोज ग्लूकोज के बीच में अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज देयर, बट इन सेल्यूलोज ग्लूकोज ग्लूकोज के बीच में द बॉन्ड इज बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, सो अब आगे हम लोग देखते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा, पहला अल्कोहल के साथ रिएक्शन हुआ एल्डिहाइड का तो हेमी एसिटल बना, सेकेंड अल्कोहल का रिएक्शन हुआ तो एसिटल बना, और सेम गोज फॉर द कीटोजेज आल्सो।
and the bond formed is a glycosidic linkage. When the two molecules that react are both monosaccharides, the acetyl and ketyl formed is disaccharide. दो molecule react are both monosaccharides, the acetyl and ketyl form is a disaccharide. यहाँ पर भी अगर monosaccharide अगर react हो गया तो ये disaccharide बनेगा. The reaction with the first molecule of the alcohol creates an additional chiral center. फर्स्ट अल्कोहल के साथ रिएक्शन होने के बाद एडिशनल कायरल सेंटर बन गया, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन पहले कायरल नहीं था, अब ये कायरल हो गया. द कार्बोनिल कार्बन बिकॉज द अल्कोहल कैन ऐड इन ईदर ऑफ टू वेज. दो तरीके से ये ऐड हो सकता है अल्कोहल, आगे से और पीछे से. ये अल्कोहल कहने का मतलब बिकॉज द अल्कोहल कैन एडेड इन ईदर ऑफ द टू वेज, attacking either the front or the back of the carbonyl carbon. ये कार्बोनिल कार्बन के या तो आगे आपकी तरफ या पीछे, थ्री डायमेंशनली आप सोचो. ये कार्बोनिल कार्बन के ये अल्कोहल या तो दिस OH ग्रुप इज फेसिंग यू, ईदर दिस OH इज अवे फ्रॉम यू. दो तरह से अटैच हो सकता है ये OH. The reaction can produce either of two stereoisomeric configuration. यही आगे जुटेगा या पीछे जुटेगा, यह अल्कोहल ग्रुप OH. उसके आधार पर अल्फा एंड बीटा configuration is generated and they are denoted as अल्फा एंड बीटा. ठीक. अब देखिए एक कायरल कार्बन एटम बढ़ता है तो कितना आइसोमर बढ़ गया, बढ़ जाता है, डबल हो जाता है ना. तो अब इसमें डबल हो गया, टू स्टीरियो आइसोमेरिक कॉन्फ़िगरेशन एंड दोज आर कॉल्ड एज अल्फा एंड बीटा. फॉर एग्जांपल, D-glucose exists in solution as an intramolecular hemiacetal in which free hydroxyl group at C5 has reacted with the aldehydic C1. Rendering the latter carbon asymmetric and producing two possible isomers designated alpha and beta. Figure 7.6. ये figure 7.6 है. तो पहले आप इस लाइन का मतलब समझिए. फॉर एग्जाम्पल, डी ग्लूकोज एग्जिस्ट इन ए सॉल्यूशन. एक गिलास पानी लो, उसमें ग्लूकोज जो बाजार में मिलता है वो डी ग्लूकोज ही है, उसको आप डिजोल्व कर दो, डी ग्लूकोज. अब आ गया एक्वस सॉल्यूशन में. उस एक्वस सॉल्यूशन में अब डी ग्लूकोज जो है वो एग्जिस्ट करेगा एज एन इंट्रामोलिकुलर हेमीएसिटल. इंट्रामोलिकुलर हेमीएसिटल, हेमीएसिटल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. ठीक. और हेमीएसिटल फॉर्म में जब एग्जिस्ट करेगा, अब 5 मिनट के बाद क्लास बंद हो जाएगी, अभी तो शुरू ही हुआ है, इतना जल्दी कैसे बंद हो गया? क्या टाइम हो गया? 12:30. अच्छा, अब मैं कोई नहीं, 5 मिनट के बाद ब्रेक दे दूंगा थोड़ा आप लोगों को, फिर शाम को क्लास लेंगे. पहले आप इस पॉइंट को पहले समझ लो, उसके बाद ब्रेक दे देंगे. ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर. फॉर एग्जाम्पल, पानी में आप ग्लूकोज को घोल दिए तो उस ग्लूकोज वो जो है वो हेमीएसिटल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इन विच द फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C5 has reacted with the aldehydic C1. C5 का C1 से रिएक्शन हो गया ग्लूकोज में. C5 में है आपका OH हाइड्रोक्सिल. इस OH का कार्बन नंबर 1 के साथ ये एल्डिहाइड ग्रुप के साथ रिएक्शन हुआ, C5 का C1 के साथ हेमीएसिटल बना. क्यों इसको बोले? डी ग्लूकोज एग्जिस्ट इन द सॉल्यूशन एज एन इंट्रामोलिकुलर
मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, इंटरमॉलिक्यूलर नहीं है, यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में ये हेमी एसिटल नहीं है, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हेमी एसिटल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हेमी एसिटल है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप रिएक्ट किया है, ठीक है, इसीलिए ये इंट्रामोलिकुलर हेमी एसिटल है, इन विच द फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C5, देखो ये ग्लूकोज है, C5 के फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो रिएक्ट किया है एल्डिहाइड ग्रुप के साथ, ये OH यहां से रिएक्ट किया, rendering the latter carbon asymmetric and producing two possible stereoisomers. Rendering यानी लेटर कार्बन, यानी C1 के साथ रिएक्ट किया, इसी को लेटर कार्बन बोल रहा है, बाद वाला कार्बन यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C5, इसको पहले बोला ये, तो ये पहला कार्बन हो गया इसके सेंटेंस के हिसाब से, हैज रिएक्टेड विथ एल्डिहाइडिक C1 रेंडरिंग द लेटर कार्बन, यानी ये लेटर कार्बन हो गया, ये लेटर कार्बन को बना दिया वो एसिमेट्रिक, ये हेमी एसिटल बनने के बाद, समझ गए, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। Yes, कार्बोनिल sir. कार्बन हो गया एसिमेट्रिक अब, और इस एसिमेट्रिक की वजह से टू पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स कैन बी जनरेटेड एंड दे आर डेजिग्नेटेड एज अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। अब कहोगे कि अल्फा एंड बीटा क्या होगा, हम अभी आगे फिगर नहीं दिखा रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाओ। Isomeric forms of monosaccharides that differ only in their configuration about the hemiacetal or hemiketal carbon atom. hemiacetal and hemiketal carbon atom कौन से हो गए? वही कार्बन एटम जो कि पहले कार्बोनिल कार्बन था, ये कार्बोनिल कार्बन जो था वो अब हेमी एसिटल बनने के बाद ये अब हेमी एसिटल कार्बन कहलाएगा, कार्बोनिल कार्बन इसको नहीं कह सकते। कार्बोनिल कार्बन तभी तक कहे जब तक वो एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप का हिस्सा था, अब हेमी एसिटल बन गया, इंट्रामोलिकुलर हेमी एसिटल और हेमी कीटल है, तो ये कार्बोनिल कार्बन को हम बोल रहे हैं हेमी एसिटल और हेमी कीटल कार्बन, और हेमी कीटल और हेमी एसिटल कार्बन आर नाउ एसिमेट्रिक। तो इस हेमी एसिटल और हेमी कीटल कार्बन के अराउंड जो दो आइसोमर्स पॉसिबल हुए, दे आर कॉल्ड एज क्या? एनोमर्स, एंड द कार्बोनिल कार्बन एटम इज कॉल्ड एज एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन भी कह दो, हेमी एसिटल कार्बन, हेमी कीटल कार्बन, यही कार्बन पहले कार्बोनिल कार्बन था। ओके, कंफ्यूज नहीं करोगे, सेम टर्म है, सेम No, कार्बन sir. है, सेम कार्बन है, उसका रोल बदल गया, पहले वो कार्बोनिल कार्बन था, हेमी एसिटल कार्बन या हेमी कीटल कार्बन था, तो वो कार्बन का दो स्टीरियो आइसोमर्स भी पॉसिबल है, तो उसको एनोमर्स बोलते हैं, और उसी कार्बन को फिर एनोमेरिक कार्बन भी कहते हैं। ठीक, चलो अभी ये क्लास तुरंत तो खत्म हो जाएगा 1 मिनट के अंदर, लेकिन ये टॉपिक नहीं खत्म हुआ, उसके बाद फिर तुम लोग ज्वाइन करोगे, ये टॉपिक खत्म करके फिर अटेंडेंस भी ले लेंगे। Okay, sir. तो अब देखिए ये हो गया आपका लीनियर स्ट्रक्चर में डी ग्लूकोज, ओके, और पांचवा वाला कार्बन के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यानी आप ग्लिसरल्डिहाइड में भी देखे थे डी ग्लिसरल्डिहाइड, डी ग्लिसरल्डिहाइड में जो कायरल कार्बन था लास्ट वाला, उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो था कहाँ था? राइट हैंड साइड में। यहाँ डी ग्लूकोज है, यहाँ भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है राइट हैंड साइड में, सबसे डिस्टेंट वाले के साथ वो रिएक्ट करेगा कार्बोनिल कार्बन। अरे ये 2 वाले 3 वाले 4 वाले से करेगा तो रिंग बनेगा? बढ़िया से नहीं बनेगा ना, माला बनाओगे तो एंड टू एंड मिलाओगे, क्योंकि ये एक्सेसिबल नहीं है, 6th कार्बन एंड पर है, तो ये एक्सेसिबल है, तो सबसे डिस्टेंट वाला 5th कार्बन दूर वाला है, तो इसके साथ ये रिएक्ट किया। नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग, फोकस ऑन दिस फोटो, रिंग फॉर्म हो रहा है, दिस इज कार्बन नंबर 1, इसको उल्टा कर दिया, अब यहां से इधर ले जाओ, ठीक है, इधर से इधर